Okay, so hi all, good evening. Okay, so we are going to do a crash course on maths for SSC. It will be for CGL, CPO, CHSL, whatever upcoming exams, and in the latest upcoming exam will be CGL, right, in the December. So all the important concepts of quant and advanced we are going to discuss in part by part. Okay, so let's start without any delay. We will use Hindi or English use करके combine करके करूँगा. बाद में अगर specifically if you want any video in English, comment. I will upload full English version also. Okay. So see, what we are going to learn first is about percentage. So we are doing arithmetic. Percentage is the very important concept that you need to learn. Okay, percentage. So we all know percentage, but actually what we are going to do here is the concept of percentage. Okay. See, for example, when I write 25 percentage, so that means 25 by 100. Now the word percent means you can see there is a two words, right? Percent. Okay, it's a Latin word centum. So per 100. So when you are telling some quantity with respect to per 100, that is percentage. So we are writing 25%, that is 25 out of 100. What it can be? It can be marks, right? It can be marks. That is out of 100, you have got 25 marks. So that becomes 25%. Now, if I say 25% profit, so 25% I can write it as 25 by 100. So simplifying in the simplified form, it is 1 by 4, right? So when I'm saying it is a profit percentage, what it is? It is a profit percentage, for example. Now that means 1 by 4, right? 4 में से 1, 4 में से 1. So what is profit? We measure always profit on CP. मान लो तुम किसी चीज 10 रुपए पे खरीदा और उसको अब तुम 12 रुपए पे बेच सकते हो, 8 रुपए पे बेच सकते हो. तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कि तुम जिस प्राइस से उसको बिक रहे हो, दैट इज एसपी. अगर वो कॉस्ट प्राइस से जितने में तुम खरीदे थे उससे ज्यादा है तो तुम्हारा मुनाफा होगा, प्रॉफिट. और नहीं तो घटेगा, लॉस होगा, राइट? सो प्रॉफिट परसेंटेज 25 मीन्स 1/4. दैट इज 4 रुपए में 1 रुपए प्रॉफिट. 4 रुपए में 1 रुपए प्रॉफिट. तो तुम्हारा एसपी कितना हो गया? एसपी हो गया तुम्हारा 4 + 1, दैट इज 5, राइट? सो इफ आई हैव टू राइट द रेशियो बिटवीन सीपी एंड एसपी, दैट इज CP4 SP5. दिस इज द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ परसेंटेज. ओके, दिस कंसेप्ट यू शुड बी नोइंग. ये कंसेप्ट आना चाहिए क्वेश्चंस को झटपट सॉल्व करने के लिए. ओके, नाउ let's take an another example. Okay, let's take another example on student percentage. For example, rate of interest. Rate of interest. Suppose it is 10 percentage. If you know the concept clearly, you will quickly convert it into fraction. Okay, 10 percentage is 1/10. That means 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज. Okay, 1 रुपए इंटरेस्ट ऑन 10 रुपए. सो इंटरेस्ट किस पे मिलता है? प्रिंसिपल पे मिलता है, राइट? प्रिंसिपल पे मिलता है. सो 10 रुपए प्रिंसिपल पे 1 रुपए इंटरेस्ट. 1 रुपए इंटरेस्ट. So what will be your amount? Amount will become principal plus interest. Principal plus interest, that is 10 plus 1 equals to 11. So the ratio of your principal is to amount will become 10 is to 11. This is the simple concepts of percentage, right? So if in case this was profit, इसमें profit हुआ था. अगर profit नहीं हुआ, suppose मान लो loss हो रहा है, right? Imagine it is given 20% loss. So what will be 20%? 20 by 100, that is 1/5. So अब 5 रुपए में 1 रुपए लॉस हो रहा है, तो सीपी मेरा 5 हो गया, राइट? सीपी मेरा 5 हो गया, तो एसपी कितना होगा? 1 रुपए लॉस हो रहा है ना, तो एसपी मेरा 4 हो गया. ओके, दिस इज द सिंपलेस्ट कंसेप्ट, ओके, ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज एंड इंटरेस्ट. दिस तीनों सर इंटर रिलेटेड, you should be knowing it. Okay, so this was one quick. Now, next, going to some another important concept in profit and loss is our discount, right? It is discount. So let's learn the concept of discount. Because percentage से question तो individually बहुत rare आता है, right? So it will be coming on the form of profit and loss or interest. So let's cover discount first. Now in profit and loss we have to discuss two concepts, that is cost price, the price जिसमें तुमने उसको खरीदा है, and the selling price SP जिस रुपए पे तुम बिक रहे हो. Another thing is that is a marked price or list price. Okay, marked price or list price. That means अब तुम किसी दुकान पे जाओ, किसी में टैग लगा होता है MRP, तो तुम जिस प्राइस पे उसको मार्क कर रहे हो
दैट इज मार्क प्राइस। मान लो तुमने एक पेन खरीद के लिया है डीलर से 10 रुपए का, उस पेन में तुमने स्टिकर लगा दिया MRP 20 रुपीज। अब उस पे तुम 20% डिस्काउंट दे रहा हो, राइट? मतलब 4 रुपए, 20% मतलब 4 रुपए डिस्काउंट दे 16 रुपए में बिक रहा हो। तो अल्टीमेटली मेरा बदले का मतलब तुम्हारा उस पेन का लिए कॉस्ट प्राइस था 10, तुमने उसको मार्क कर दिया 20 पे। अब उस पे तुम डिस्काउंट कितने दे रहे हो? डिस्काउंट दे रहे हो तुम 20%। तो 20 का 20% कितना होगा? 20 का 20% 1/5 ऑफ 20 दैट इज 4। तो 20 रुपए पे तुम 4 रुपए डिस्काउंट दे रहे हो अल्टीमेटली। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 20 - 4 दैट इज 16। सो अल्टीमेटली अब इफ यू कंपेयर कि तुम्हारा कॉस्ट प्राइस कितना था, तुम्हारा कॉस्ट प्राइस 13 और सेलिंग प्राइस हो गया 16। मतलब 10 रुपए पे 6 रुपए प्रॉफिट हुआ ना, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? प्रॉफिट परसेंटेज होगा तुम्हारा 6/10 इंटू 100 दैट इज 60%, राइट? 60%। नाउ इमेजिन उनको सीपी और एसपी पता नहीं है, सीपी और एसपी पता नहीं है, सिर्फ बोल दिया कि प्रॉफिट परसेंटेज है 60 और तुम्हारा डिस्काउंट परसेंटेज है 20। तो तुम सीपी और एम एसपी का रेशियो और एमपी का रेशियो तुमको ये भी पता नहीं, तो कैसे निकालोगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऐसा कुछ नहीं, इसमें से ही लॉजिक यहाँ से ही आता है। सीपी इज टू एमपी इज 100 - D इज टू 100 ± P और L। प्रॉफिट होगा तो प्लस परसेंटेज, लॉस होगा तो माइनस होगा। तो हमारा केस में क्या था? डिस्काउंट था मेरा 20%, डिस्काउंट था मेरा 20% और प्रॉफिट आया 60%, जस्ट फॉर वेरिफिकेशन। तो 100 - D हो जाएगा 100 - 20, और प्रॉफिट 60 हो रहा है ना, तो 100 + 60। तो ये हो गया मेरा 80:160, दैट इज 1:2, 1:2। मतलब सीपी और एमपी का रेशियो 1:2 आ रहा है। यहाँ पे देख लो, सीपी मेरा 10 था, एमपी मेरा 20 था, रेशियो कितना आ रहा है? 1:2 आ रहा है ना। बस इतना ही होता है कंसेप्ट। अब इसमें से एक वैल्यू क्वेश्चन में दिया होगा, मान लो तुमको दिया है एमपी का वैल्यू, तो तुम 2 = 20 कर लोगे, तो एक का वैल्यू 10 आ जाएगा, यहाँ से कॉस्ट प्राइस हमारा 10 होगा, राइट? ग्रेट। नाउ मूविंग अहेड, अब प्रॉफिट एंड लॉस में यही सारे कंसेप्ट होते हैं, और एक होता है सक्सेसिव डिस्काउंट वाला कंसेप्ट, दैट इज वेरी इजी। तो डिस्काउंट मतलब कैसे होता है? डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। और सक्सेसिव मतलब एक चीज है जिस पे बोल रहा है कि पहले 20% डिस्काउंट दिया, उसके बाद फिर से 20% डिस्काउंट दिया, तो एक्चुअल डिस्काउंट कितना हो गया? 40% हो गया क्या? 40% होगा? नहीं, 40% नहीं होगा। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब मान लो 100 रुपए की चीज था, तुमने 20% डिस्काउंट दिया, मतलब 20 रुपए दिया, 80 हो गया। फिर 80 पे तुमने 20% और दिया, 80 का 20% कितना होता है? 16 रुपए होता है। तो 16 रुपए घटा दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 64। तो अल्टीमेटली 100 की चीज 64 रुपए में बिके, तो 36% डिस्काउंट हो गया मेरा। तो ये होता है सक्सेसिव। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर फॉर्मूला समझना चाहते हो तो इफेक्टिव रेट जो डिस्काउंट का होता है वो होता है D1 + D2 -D1 × D2/100। यहाँ रख लो, ठीक है? देखो पहले 2020 था, तो ये हो गया 20 + 20 -20 × 20/100, राइट? तो ये आ जाएगा तुम्हारा 40 - 4, 36%। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है? अब तुम फॉर्मूला से अगर नहीं करना चाहते तो एक चेन रूल भी होता है, 20% होता है ना। तो 20% के हमने क्या बोला था? 20% मतलब 1/5। अब ये डिस्काउंट परसेंटेज है, 5 रुपए में 1 रुपए डिस्काउंट हो रहा है, 5 रुपए में 1 रुपए डिस्काउंट। तुम 5 की चीज को 4 रुपए में बिक रहे हो, फिर 5 की चीज को 4 रुपए में बिक रहे हो, ठीक? तो अब इसको चेन रूल से मल्टीप्लीकेशन करना होगा, लेफ्ट से लेफ्ट, राइट से राइट। 25 की चीज को तुम 16 रुपए में बिक रहे हो, तो कितना हुआ? 9 हुआ। कितने पे हुआ? 25 पे हुआ। 9/25 × 100। अच्छा, यहाँ से भी आता है 36%, जो तुम्हें सही लगे। बट ये वाला कंसेप्ट, चेन रूल वाला कंसेप्ट काम आएगा जब 3-4 इफेक्टिव रेट तुमको एक साथ निकालना होगा। दो के लिए तो तुम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। बट अगर 3-4 रेट
कंसेक्यूटिव है तो चेन रूल विल बी फर्स्टर। ओके, अच्छा, अब मूविंग नेक्स्ट, हम डिस्कस कर लिए मोर और लेस प्रॉफिट एंड लॉस का हर कंसेप्ट ओवर हो गया, परसेंटेज की हो गया। अब बताइए रेशियो पे। रेशियो भी बहुत इजी टॉपिक है, तो इसमें मैं एक ही कंसेप्ट डिस्कस करूंगा। मान लो जो हमको तीन चार क्वांटिटी का रेशियो निकालना होता है, राइट। ए इज टू बी दिया हुआ है 2:3, बी इज टू सी दिया है 4:5। तो ए इज टू बी इज टू सी क्या होगा? तो इसको तो कन्वेंशनल जो तरीका होता है उसके लिए तो A:B में 2:3 है और B:C में 4:5 है। तो यहाँ पे B का वैल्यू 3 है, यहाँ पे B का वैल्यू 4 है, दोनों को सेम कर दो। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12 होता है, राइट। एलसीएम इज 12। तो यहाँ पे हमको B को 12 करने के लिए क्या करना होगा? इसको हमको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 8:12, राइट। और यहाँ पे हमको क्या करना होगा? 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 12:15। अब बी सेम सेम हो गया, बी सेम सेम हो गया, तो हमारा A:B:C कितना आ गया? A:B, A 8 आ गया, B 12 आ गया और C 15 आ गया। तो हमारा A:B:C 8:12:15। ये तो कन्वेंशनल वे होता है। लेकिन अगर तीन से ज्यादा या चार पांच होता है तब ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, शॉर्टकट भी है, बट तुमको जो सही लगे वो कर सकते हो। दैट इज A:B:C बना लो। A:B कितना हुआ है? 2:3 और B:C कितना दिया है? 4:5। अब दो वैकेंट स्पेसेस है ना, यहाँ पे और यहाँ पे। बस वैकेंट स्पेस में वही आएगा जो एडजस्टेंट में होता है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 चले आएगा, यहाँ 4 है, यहाँ 4 चले आएगा। बस अब मल्टीप्लाई कर दो, वर्टिकली मल्टीप्लीकेशन होगा। 8, 4 3 = 12, 5 3 = 15, ये निकल के आ जाएगा। ओके, अच्छा, ये हो गया एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो कि हमेशा पूछा जाता है। ओके, अब चले आते हैं इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं पहले ही बोला था कि प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है सिंपल इंटरेस्ट में, राइट। सो अगर मैं एसआई का सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ तो वो क्या होता है? एसआई इक्वल्स टू P/R/T/100। बट ये फॉर्मूला कभी यूज ही नहीं होगा अगर तुमको कंसेप्ट क्लियर है। और हाँ, ये टाइम हमेशा क्या होता है? ईयर में होता है, ठीक, ईयर के रेस्पेक्ट में होता है। सो मान लो अगर 8 महीने बोल रहा है तो तुमको टाइम की जगह P/R/8 लिख दोगे, बट नीचे 12 आ जाएगा, बिकॉज 8 मंथ इक्वल्स टू 8/12 ईयर। ये हमेशा ध्यान में रखना होगा ये चीज। ओके, कभी भी मंथ बिठा मत देना। ओके, अच्छा, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है सीआई में। अगर तुमको कंसेप्ट आता है, सो मान लो कि प्रिंसिपल, एक एग्जांपल ले लेते हो। प्रिंसिपल 1000 रुपए की है, रेट 10% की है, तीन और टाइम पीरियड 3। तो एक साल में 10% मिलेगा, तो 3 साल में कितने मिलेगा? 30%। 1000 का 30% निकाल लो, कितना होता है? 300 होता है, राइट। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा मेरा? 300, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कुछ और अमाउंट क्या हो जाएगा? 30,000 + 300, 1300। अच्छा, अब जो समझने वाली चीज है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई। तो सीआई में क्या होता है? ये एग्जांपल लेता हूँ। 1000 रुपीज, 10% इंटरेस्ट और टाइम है 3। मैं फॉर्मूला नहीं करूंगा क्योंकि फॉर्मूला तुमको आता है, मैं वही करूंगा जिसमें जल्दी से एग्जाम में सॉल्व होगा। प्रिंसिपल है 1000 रुपये, रेट है 10% और टाइम है 3 साल। तो पहले तो कंसेप्ट समझ लो सीआई में होता क्या है। पहले साल के लिए पकड़ते, टाइम 3 साल के है ना, तो हम पहले साल के लिए पकड़ते। फर्स्ट ईयर में क्या होगा? प्रिंसिपल है 1000 रुपये, 10% इंटरेस्ट है, तो मेरा इंटरेस्ट 10% ही आएगा 1000 रुपये पे, और तो कुछ है नहीं। तो इंटरेस्ट आ जाएगा मेरा 100। अब इसमें क्या होगा? सेकेंड ईयर में इस पे तो आएगा ही इंटरेस्ट, और सेकेंड ईयर में इस पे तो इंटरेस्ट आएगा ही। ओके, इसमें यहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, आएगा। सो इंटरेस्ट आएगा 100, 10%। और पहले वाला जो इंटरेस्ट था इसके ऊपर भी 10% आएगा, तो 100 का 10% कितना हुआ? 10। सेकेंड साल मेरा इंटरेस्ट आएगा 110। यही कंसेप्ट होता है कंपाउंड। प्रिंसिपल पे तो आएगा ही आएगा, अमाउंट जो पिछले साल का इंटरेस्ट वही आएगा। बेसिकली ये क्या है, यहाँ पे अगर 100 पे इंटरेस्ट आ रहा है तो यहाँ पे मेरा अमाउंट हो गया 1000 + 100, दैट इज 1100, राइट।
अब 1100 का सीधा सीधा 10% अगले साल आ रहा है। और सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं आता है, एकदम प्रिंसिपल के ऊपर ही आता है, राइट। तो ये तो एक तरीका हो गया। अब 3 साल के लिए क्या होगा, 2 साल के लिए तो 2 साल है, आपका टाइम 3 साल के लिए है, मैं करूंगा करके दिखाऊंगा। बट ये मान लो आप क्या देख रहे हो, 2 साल के लिए ये क्या आ रहा है, 1100 आ रहा है, राइट। सो यहाँ का 10% 110 आ रहा है, तो बेसिकली मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, 100, 100 + 110, मतलब टोटल 210 मेरा इंटरेस्ट आ रहा है। तो मेरा अमाउंट कितना हो गया, 1210, मतलब 1000 था, 1210 हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। सिंप्लीफाई कर लो, 100, 121, तो देख रहे हो 100 पे 121, मतलब 21 रुपये इंटरेस्ट मिले 100 पे, दैट इज 21%। तो इसमें भी हम इफेक्टिव रेट निकल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। और कंपाउंड इंटरेस्ट का इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या होता है, R1 + R2 प्लस, डिस्काउंट में माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, बिकॉज यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वहां पे घट रहा है, बस इसीलिए। ओके, सो R1 + R2 + R1R2/100, ये एक फॉर्मूला है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है तो 2 साल में आर इफेक्टिव 20% होता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में वो हो जाएगा मेरा 21%। ओके, 21% इक्वल्स टू 21%, ये हो गया, ठीक। अब सिमिलरली अगर तुम फिर 3 साल के लिए करोगे तो क्या होगा, 21 + 10 + 21 × 10/100, तो ये हो जाएगा 31 + 2.1, 33.1। अब तुम, अगर मैं सारे इंटरेस्ट को लिखूं तो एक चीज नोटिस आएगा, पहले साल के लिए कितना था, 10%, दूसरे के लिए 21%, तीसरे के लिए 33.1%। कुछ चीज नोटिस कर रहे हो क्या, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ तो होगा, राइट। सो 21 से अगर मैं 10 को डिवाइड कर दूंगा तो मतलब ये कितने गुना हुआ है, यहाँ पे 10% था, और मतलब मेरे एक साल के लिए 10% हो रहा है, दूसरे साल के लिए 21%, 33.1। सो बेसिकली मैं प्रिंसिपल उठा लेता हूँ, राइट। सो पहले क्या था, 1000, एक साल बाद कितना हो गया, वो 10% हो गया, सिंपली वो अमाउंट हो गया 1100, राइट। फिर उसके बाद मैं, ये मेरा एक साल बाद हुआ था, 2 साल बाद मेरे को दिखा कितना हुआ, 1210 हुआ, 1210 हुआ। अब 3 साल के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे अगर तुम एक पैटर्न अगर देखोगे, 1000 से ये 1100 हो रहा है। मैं अगर सिंप्लीफाई भी कर लूँ इसको, हरे जीरो कट गया, सो 100, 110, 121, राइट। अब देखो इसके, इसका 1.1 गुना हो रहा है मेरा अमाउंट, ये फिर इसका 1.1 गुना हो रहा है। ये देख रहे हो, मतलब मैं अगर इसको लिखूं, प्रिंसिपल से एक कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर यहाँ PR², फिर यहाँ PR³ ओके, एक्चुअली ये सेकेंड स्टेप से हो रहा है, यहाँ पे PR² PR³, और ये मेरा क्या हो रहा है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन आ रहा है, जहाँ पे R मेरा कॉमन रेशियो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट हमेशा जीपी में रहता है, ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में ये कंसेप्ट काम आता है, राइट। तो अगर तुमको मान लो 2 साल के लिए पता है, तो तुमको एक साल के लिए निकलने के लिए क्या करोगे, तुम सिंपली उसका स्क्वायर रूट कर दोगे, राइट। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहीं से देखा था कि 100 रुपए की चीज 121 हो रहा है, राइट। कितने में हो रहा है, ये मेरा PR, एक्चुअली मेरा P है, और ये मेरा PR² है, ठीक है। तो 100 रुपए की चीज अगर 121 हो रहा है 2 साल में, 2 साल में 121 हो रहा है, 2, तो उसको तुम रूट कर लोगे तो एक में वो 10 का 11 हो रहा है, तो 10 रुपए की चीज 11 हो रहा है, मतलब 1/10 × 100, एटलीस्ट 10% तुम्हारा इंटरेस्ट आ रहा है, यहाँ से तुम रेट निकल सकते हो। अब हम यहाँ पे रूट क्यों किया, क्योंकि 2 साल में हो रहा है ना, तो 2 साल में कितना होता है मेरा PR², PR² का अगर तुम रूट कर लोगे, R² का अगर तुम रूट कर लोगे तो वो PR आ जाएगा, PR आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमको आना चाहिए, क्योंकि क्योंकि मैं क्यों कर रहा हूँ इसको, प्रिंसिपल को, ठीक है। तो मैं फिर से क्लियरली एग्जांपल करता हूँ, तो प्रिंसिपल 100 रुपये था, 10% इंटरेस्ट में वो एक साल बाद अमाउंट कितना हो गया मेरा, 10 इंटरेस्ट मिल गया, 110 हो गया।
सेकेंड ईयर में मेरा कितना इंटरेस्ट आ रहा है 2 साल में, ये तो 1 साल का हो गया, तो दूसरे साल मेरा फिर से 100 रुपये तो इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, 100 रुपये में मेरा अगर 10% की मान लो, तो इसको हम फैक्टर ट्री से अब कर लेते हैं। उसके बाद में ये फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार देख लेते हैं। तो जो नया मेथड है फिर से, ये देखो, 1000 मेरा था, 10% इंटरेस्ट से पहले साल 100 रुपये, दूसरे साल में 100 रुपये और तीसरे साल में 100 रुपये। सेकेंड ईयर में इसका भी 10% आएगा, तो ये हो गया मेरा 10, और तीसरे साल में क्या होगा, इसका 10%, इसका 10% और इसका 10%। तो मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, यहाँ पे मेरा 300 हो गया, यहाँ पे मेरा 300 हो गया, यहाँ पे मेरा 30 हो गया, और ये मेरा 1 हो गया। तो 300 प्लस 30 प्लस 1, दैट इज 331। ये मेरा 3 साल में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं आपसे पहले साल का बात करता हूँ तो मेरा इतना, तो पहले 1 साल के बाद मेरा अमाउंट कितना हो रहा है, 1100। 2 साल बाद 1210, और 3 साल बाद 1331। यही हो रहा है ना। और पहले मेरा प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था मेरा 1000। अब मैं वही बोल रहा हूँ, 2 साल में कितना हुआ है, यहाँ पे P इंटू आर हुआ है, यहाँ P इंटू आर स्क्वायर हुआ है। मतलब इसमें कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 1.1। यहाँ फिर से इंटू 1.1 हुआ है, राइट। और यहाँ फिर से 1.1 मल्टीप्लाई हुआ है। अब 1000:121 है, तो मतलब ये मेरा क्या है, ये मेरा सिंपली P है। तो मेरा P/P r² कितना है, P/P r² मेरा 100/121। P कट गया, ठीक है। तो मेरा r² हो गया 121/100। तो मेरा r कितना होगा, यहाँ से मैं अगर रूट करूंगा तो 11/10, राइट। तो 10 रुपये पे 11, 1 रुपये इंटरेस्ट। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो मेरे को आ रहा है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो मेरा आ रहा है, राइट। तो 10 रुपये में 1 रुपये इंटरेस्ट, तो 1/10 इंटू 100, दैट इज मेरा 10% इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट, राइट। बिकॉज यहाँ पे आर एक्चुअली की, यहाँ पे आर तो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी नहीं। तो ये आर तो मेरा 1 पॉइंट आ गया जो यहाँ पे लिख रहा हूँ। बट इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही होता है कि जो हम यहाँ से रूट कर रहे हैं ना, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से हम रूट कर रहे हैं, तो इसको अगर मैं रूट कर लूंगा तो मेरा बेसिकली अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो आ रहा है। मतलब अमाउंट कितने गुना हो रहा है, क्योंकि ये एक्चुअली अमाउंट बाय प्रिंसिपल का ही तो रेशियो है। तो ये आर मतलब बेसिकली अमाउंट बाय प्रिंसिपल ही तो है, जो 1.1 आ रहा है, क्योंकि हम 1100 को 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, 1210 को 110 से कर रहे थे। तो यही मेरा आ रहा है अमाउंट बाय प्रिंसिपल, तो इससे मेरा ये निकल रहा है। तो ये होता है सिंपल कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तीनों तरीके से आप कर सकते हो, बोथ ऑल आर इक्वली इफेक्टिव। ओके, अच्छा। अब एक और कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है जो अरिथमेटिक है, वो है एलिगेशन। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एलिगेशन। एलिगेशन का क्वेश्चंस तुम कन्वेंशनल मेथड से कर सकते हो, बट इट विल बी टाइम टेकिंग। सो टू मेक द थिंग्स इजी वी यूज एलिगेशन। एलिगेशन का सिंपल फंडा क्या होता है, एक टाइप ए है, एक टाइप 2 है, दोनों मिला के टाइप 3 हो गया। अब इसमें से इसका 1:2 का रेशियो आ जाता है। दिस इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन। ओके, तो मान लो एक सोल्यूशन है 20% का और एक सोल्यूशन है 30% का। अब दोनों मिला के तुम 25% का कर रहे हो, तो ए 1 और 2 का रेशियो क्या हो, इसमें से इसको घटा दो, 5 हो गया, 25 - 20। और इसमें से इसको घटा दो, 30 - 25, यहाँ पे भी 5 हो रहा है। तो 5:5 मतलब 1:1। अब एक लॉजिकली सोचो, अगर कोई भी चीज है, कोई भी सोल्यूशन है या कुछ भी है, एक 20% का है, एक 30% का। अब जब दोनों को तुम मिलाओगे तो जो फाइनल आउटकम आएगा ये दोनों के बीच में ही होगा ना। दैट इज इट विल लाई, इट विल बी मोर देन ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड लेस देन इक्वल टू 30। इसके कम या इसके ज्यादा तो पॉसिबल होता ही नहीं है। तो मान लो एक सोल्यूशन है जिसका
कुछ भी क्वांटिटी का परसेंटेज समझ लो, अल्कोहल है, स्पिरिट है, 20% है, तो 1 लीटर ले रहे हो, इसका 1:1 मतलब 20 है उसमें, और इसका भी 1 ले रहे हो, उसमें 30 है। तो टोटल दोनों का मैं 1-1 लीटर ले आओ, ठीक है, 100-100 लीटर ले आओ। तो 200 में से मेरा कितना हो रहा है, आउट ऑफ टोटल 200, परसेंटेज निकालो, 50/200 इंटू 100, राइट। तो कितना आ गया मेरा, 25% आ गया। वही तो था पॉइंट। अब मान लो पहले वाला का था, तुम 2 यूनिट लो, इसका 1 यूनिट लो, तो 2 यूनिट मतलब 20 × 2 40 हो गया। 2 यूनिट मतलब 100-100 200 लीटर ले लिया, और इसका 1 यूनिट ले रहा हूँ मतलब 30। तो टोटल कितने लिया है हम, इसका 2 यूनिट मतलब 200, और इसका एक मतलब 300 लिया, इंटू 100। अब 70/3 आ जाएगा। 70/3 मतलब अप्रोक्सीमेटली 2/3 23.33 आएगा। तो ये भी तो हुआ ना मेरे 20 और 30 के बीच में। तो एलिगेशन का यही कंसेप्ट है। तो अब इसमें से हम क्वांटिटीज का रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो निकालने का मतलब क्या हो, कि इसको और इसको हम कितने रेशियो में मिक्स करें। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। जब प्रॉफिट एंड लॉस पे हम एलिगेशन करते हैं, तो जो रेशियो आता है यहाँ पे, ये किसका आता है, ये हमेशा मानना कॉस्ट प्राइस का आता है। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज किसके कैलकुलेट होता है, बेस में। अगर प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो, बेस में तो हमेशा सीपी रहता है ना, ऊपर प्रॉफिट या लॉस रहता है, प्रॉफिट है। तो जो बेस पे रहता है उसका ही रेशियो आता है एलिगेशन पे। तुम सॉल्व करके देख सकते हो, राइट। सिमिलरली स्पीड टाइम डिस्टेंस में स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, या डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, और टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस पे स्पीड होता है। तो वहां पे भी जो डिनोमिनेटर पे रहेगा उसका ही रेशियो हमको आता है, ठीक है। तो अगर सीपी का रेशियो आता है, तो ये हमेशा आर्टिकल का रेशियो भी होता है, बिकॉज कॉस्ट प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल। तुम लॉजिकली सोचो, एक पैकेट चिप्स का एक पैकेट चिप्स का कॉस्ट प्राइस है 10 रुपये। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 हुआ, तो मतलब ये 10 गुना हुआ ना, तो ये भी तो 10 गुना ही होगा 10 पैकेट चिप्स का। तो अगर तुम कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल रहे हो, तो तुम आर्टिकल का रेशियो भी निकल रहे हो, ये हमेशा याद में रखना, ओके। तो हम एलोकेशन का कंसेप्ट बहुत ब्रीफली डिस्कस किया हूँ, इंटरेस्ट का कंसेप्ट बहुत ब्रीफली डिस्कस किया हूँ। जितना भी लगता है मेरे को लगा है मैं सब कुछ डिस्कस किया हूँ। अब एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट में आते हैं, वो है टाइम एंड वर्क, ओके। अरिथमेटिक का ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में सिंपल, ए किसी काम को 3 दिन में करता है, बे किसी काम को 4 दिन में करता है। तो तुम टोटल काम को मान लोगे 12, इन दोनों का गुना, इन दोनों का गुना। तो ये हो गया मेरा डेज का कलम, ये मेरा हो गया वर्क, और यहाँ पे आते हैं एफिशिएंसी। 12 यूनिट काम 3 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता है, 4। एफिशिएंसी इज बेसिकली वर्क पर डे, ये 4 यूनिट पर डे करता है, 4 यूनिट पर डे एफिशिएंसी। बी कितना करेगा, 12/4, 3 यूनिट पर डे। तो दोनों का एक दिन में कितना हो गया, ऐड करके 7 यूनिट पर डे। तो दोनों अगर साथ में कम करेगा, तो ये 12/7 होगा, जितना भी आएगा 15/7 डेज में ये कम खत्म हो जाए। दिस इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क। इसमें वेरिएशंस आते हैं, नेगेटिव वर्क होता है। नेगेटिव वर्क मतलब टैंक में अगर कोई निकल रहा है, तो यहीं पे मान लो ये नेगेटिव था, पानी को खाली कर रहा है, तो इसका -3 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर 12/1 12 होता है। वैसे ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके थ्रू हम डिस्कस करेंगे एडवांस का भी, अगर कुछ कंसेप्ट है तो वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस नाउ। सो आई हैव सिलेक्टेड सम गुड क्वेश्चंस। हाँ, यहाँ पे बोला, इन व्हाट रेशियो शुगर कॉस्टिंग ₹60 पर केजी बी मिक्स्ड विद शुगर कॉस्टिंग ₹42 पर केजी। तो एलिगेशन का क्वेश्चन बन गया ना, एक कैटेगरी दूसरे कैटेगरी मिला के। सो बोले बस, ये सीपी है मेरा फर्स्ट कैटेगरी का, ये सेकंड कैटेगरी का, और दोनों मिला के 56 पे बेच रहे हो, 12% गेन। तो परसेंटेज का कैलकुलेशन, प्रॉफिट इक्वल्स टू 12%। 12% मतलब 12/100, मतलब 100 रुपये पे 12 प्रॉफिट, मतलब सीपी अगर मेरा 100 हुआ, तो एसपी मेरा कितना हुआ, 112। क्वेश्चन में 112 की जगह कितना दिया है, 56। सो एक का वैल्यू कितना हुआ, हाफ हुआ, एक का वैल्यू हाफ हुआ। तो 100 का वैल्यू कितना, 100 का वैल्यू हो गया 50।
तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना चाहिए 50। मेरा बदला का मतलब अगर 50 की चीज को तुम 56 पे बिकोगे तो तुम्हारा 12% प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे 60 रुपीज कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 60 रुपीज है, दूसरे वाला 42 है, दोनों मिला के 50 चाहिए हमको। तो इसमें से इसको घटा दो 10, इसमें से इसको घटा दो 8, तो रेशियो आ जाएगा मेरा 4:5। खत्म। 10 सेकेंड का क्वेश्चन, राइट। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ये हमने डिस्कस नहीं किया, इस फॉर्मूला को हम यहीं से डिस्कस करेंगे। एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। कब होता है? जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है और a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी तो नहीं है, तो यही वाली केस मोरल ऑफ 90% ऑफ द केस में यही फॉलोड होता है। ठीक है, पहले वाला सीन ए प्लस बी प्लस सी का 0। तो पहले हम इस पे अगर कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, तो ए का वैल्यू हो गया मेरा 5x-3, बी का वैल्यू हो गया हमका 2x+5, सी का वैल्यू है, देखो 27 बाहर है, 27 को अंदर लेके चले जाओ क्योंकि 3³ 27 होता है, तो सी इज एक्चुअली 3 × 4 - 3। बस अब इस तीनों का सम 0 होगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 होगा, इसको लगा देते हैं। तो 5x-3 प्लस 2x+5 प्लस 12 - 9x इक्वल्स टू 0। 5 2 7, 7 -9 -2, और यहाँ पे 12 5 17 इक्वल्स टू +14, राइट। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? x का वैल्यू आ गया 7। x का वैल्यू 7 है तो 2x+1 का वैल्यू निकालना है। तो 2x+1 हमारा हो जाएगा 2 × 7 + 1 50। very easy. So all these questions I am discussing are very important questions from exam point of view. तो दो क्वेश्चन हो गया, 2 मिनट में भी नहीं लेगा टाइम। ओके, तीसरा क्वेश्चन है, देखो इसमें भी रूट्स हमेशा a अगर 7 - 4√3 है तो 1/a मेरा जस्ट इसका कंजुगेट पेयर हो जाएगा 7 + 4√3। कंडीशन क्या है? इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 1 आना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब x a इक्वल्स टू x प्लस रूट बी अगर होता है तो 1/a x माइनस रूट बी होगा, एंड द कंडीशन x² माइनस b² इक्वल्स टू 1। ठीक है, इक्वल्स टू 1, जो भी सेकंड फैक्टर है उसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर एक आना चाहिए, बिकॉज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा ना, रेशनलाइज करोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब a² - b², डिनोमिनेटर एक होता है, इसलिए जस्ट रिवर्स हो जाता है। अब तो हो ही गया, a प्लस 1/a मेरा कितना हो गया? 14 आ जाएगा। अब हमको पता है कि a प्लस 1/a अगर 14 है तो हमको √a प्लस 1/√a चाहिए, जो कि हो जाएगा मेरा 14 + 2 का रूट, दैट इज √16 इक्वल्स टू 4। तो ये कैसे हुआ? ये एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, और अगर तुमको पता भी नहीं तो तुम इसको मान लो ना कि a√a प्लस 1/, इक्वल्स टू x। अब इसको स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो मैं यहीं पे दिखा देता हूँ एक बार फिर से कैसे आया ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट यूज्ड फॉर्मूलाज होते हैं एंड ये बहुत कॉमन होते हैं। तो तुम इसको मान लो ना k है, स्क्वायर कर दो बोथ साइड्स में, तो क्या हो गया? a प्लस 1/a प्लस 2 इक्वल्स टू k²। तो a प्लस 1/a का वैल्यू तुमको यहाँ पे पता है 14, तो 14 + 2 इक्वल्स टू k², तो k² का वैल्यू कितना आ रहा है? 16 आ रहा है, 16 आ रहा है, राइट। तो k इक्वल्स टू 4 लेंगे, यहाँ पे -4 नहीं लेंगे क्योंकि √a प्लस 1/√a है, जो कि हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ये कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका तुमको रखना चाहिए फॉर्मूला भी। x² प्लस x²y² प्लस y⁴ का 2 फैक्टर होता है, इक्वल्स टू x² प्लस xy प्लस y² इंटू x² माइनस xy प्लस y²। बस हो गया। एक फैक्टर 21 है, दूसरा फैक्टर दिया है 3, अदर फैक्टर हमको निकालना है जो कि ये है। तो x² माइनस xy प्लस y² हमारा कितना आ गया? 7 आ गया। और जो दिया हुआ है दोनों को लिखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी पूछा गया।
वो ऑपरेशन परफॉर्म करो। एक्स वाई पूछा है, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कट जाएगा। -2xy इक्वल्स टू 7 - 3 4। तो एक्स वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स वाई का वैल्यू -2 आ रहा है। तो 4xy का वैल्यू कितना होगा, 4xy का वैल्यू -8 होगा, राइट, -8 होगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक, राइट। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन में देखो, पहले फॉर्मूलाज में लिख देता हूँ इस क्वेश्चन में कौन सारे फॉर्मूला यूज होते हैं। सारे फॉर्मूला यहाँ नहीं जरूरत होगा, फिर भी पहले क्वेश्चन के ए स्क्वायर ए बी सी का फॉर्मूला हमको पता चाहिए, ए बी सी को चाहिए हमको। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 × ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला से ही हो जाएगा। तो 3 का होल स्क्वायर 9 हो गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया है 6 प्लस 2 × ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, तो 9 - 6 3 हो गया। सो 3/2 इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका वैल्यू आ गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए बी सी का चाहिए ना। तो यहाँ पे एक और इक्वेशन दिया है, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल्स टू 2। इसको कर लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई ए बी सी इक्वल्स टू 2, राइट। तो हमको क्या पता है, ऊपर का वैल्यू हमको पता है क्या है, 3/2 है, राइट। सो 2abc इक्वल्स टू 3/2। सो ए बी सी हमारा आ गया 3/4, 3/4। कोई प्रॉब्लम, इज एब्सोल्युटली फाइन, राइट। सो यही फॉर्मूला से यहाँ पे हो जाता है, क्यूब का फॉर्मूला हमको यहाँ पे नहीं चाहिए। सो एक और क्वेश्चन है, ए बीकर कंटेन्स एसिड एंड वाटर in the ratio 1:x. Now 350 ml of the mixture and 70 ml of water are mixed and the ratio. So very easy question. देखो, 350 ml मिक्सचर है और 70 ml वाटर को मिक्स किया, तो टोटल क्वांटिटी कितना हो गया, टोटल हो गया हमारा 420। 420 में 5:7 रेशियो में है, डिवाइड कर दो, 12 से डिवाइड करेंगे तो 35 आता है। तो 35 × 5 हो गया मेरा 175, और 35 × 7 हो गया मेरा 210, और 37×5 = 35, 245, राइट, 245। तो ये मेरा क्या हो गया, 7 यूनिट मेरा वाटर है। तो ये मेरा वाटर हो गया, ये मेरा कितना हो गया, एसिड हो गया, ये मेरा एसिड हो गया। बट इसमें हमने कितने ऐड किए थे, पहले कितने ऐड किए थे, 70 ml वाटर ऐड किए थे। तो पहले कितना था, ये +70 करके आए, तो पहले इसमें से 70 घटा दो, 571। तो पहले 175 एसिड था और 175 वाटर था, तो रेशियो कितना आ गया, 1:1। हमने बोला है 1:x। तो x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू 1 होगा। वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, x इक्वल्स टू 16 फाइंड। तो ये क्वेश्चन मैं तुमको होमवर्क की तरह दे रहा हूँ। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना, इसके आगे से नेक्स्ट वाला कंसेप्ट और नेक्स्ट वाला क्लास यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये क्वेश्चन होमवर्क है, ये अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ओके, so have a hope you have enjoyed and learned some new things. This is a very brief and concise course जो कि प्रैक्टिस में एग्जाम ओरिएंटेड व्यू से तुमको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स में बताऊंगा। बेसिक कोर्स तो नहीं है, अगर बेसिक कोर्स में तुम इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करना, मैं फुल फ्लेजेड एकदम बिगिनर लेवल से बेसिक कोर्स भी स्टार्ट कर दूंगा। ओके, थैंक यू।